لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإيتاء الزکاة. حاضرین گرامی، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آخری پارے کا ایک مشہور و معروف سورہ البینہ کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لوگوں کو اسی بات کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط طریقہ ہے، مضبوط دین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان میں سے ایک اہم پلر، اہم رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے. حاضرین، چونکہ عام طور سے مسلمان رمضان المبارک میں مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے احکام اور مسائل، اس کی اہمیت اور ادا کرنے کے فوائد، ادا نہ کرنے کے نقصانات اور چند احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کرنا از حد ضروری سمجھتا ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ رمضان سے رمضان تک حساب رکھا جائے، کیونکہ اسلامی شریعت، اسلامی احکام کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہیں، قمری ڈیٹ سے ہیں، ہجری کیلنڈر سے ہیں، نہ کہ انگریزی گریگورین کیلنڈر سے ہیں.
उसके हिसाब से देखेंगे तो हर साल 10 दिन ताखीर हो जाएं। इसलिए रमजान से रमजान हिसाब रखना अच्छी बात है। हाज़रीन, ज़कात की अहमियत का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में नमाज के बाद ज़कात का तज़किरा किया है। बाज़ जगह पर आपको रोजे का तज़किरा नहीं मिलेगा, हज का जिक्र नहीं मिलेगा। ये सारे चंद अय्याम बाद इसकी फर्जियत का हुक्म हुआ है। बाज़ अहले इल्म लिखते हैं कि ज़कात के ताल्लुक से मक्के में ही उसका कॉन्सेप्ट दे दिया गया था, और जबकि बकिया जो इस्लाम के अरकान में से बकिया जो 3 हैं, उसके बारे में मदीने में आने के बाद उसका हुक्म हुआ है। यहां तक कि ये ज़कात अल्लाह ताला ने अगली उम्मतों में भी रखा है। बनी इसराइल के ताल्लुक से भी यही कहा कि उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि वो ज़कात अदा करें। ज़कात अदा करो, अक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन। बनी इसराइल को खिताब करके अल्लाह ने यह भी फरमाया कि सलात के साथ साथ ज़कात अदा किया करो। जिस तरह से इसका हुक्म था सलात का, ज़कात का भी अल्लाह ताला ने पहले से ही हुक्म दिया है। ज़कात के माने क्या है? ज़कात के माने 2 है। एक माने पाक साफ करना, ज़कात के माने हैं पाक साफ करना, और दूसरा माना है इजाफा करना, बढ़ोतरी करना, बढ़ा के देना। ज़कात के अंदर दोनों माने पाए जाते हैं, दोनों माने पाए जाते हैं। ज़कात के अंदर पाक साफ करने का माना भी है। ज़कात इंसान को बखीली से, उसके दिल को बखीली से पाक करती है, उसके माल को गंदगियों से पाक साफ करती है। ज़कात में इजाफा के बाइस भी है ज़कात। ज़कात के जरिए से माल में इजाफा होता है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, खत्म करता है, और सदकात व खैरात और ज़कात को बढ़ाता है। जाहिरी तौर पर हमें लगता है कि माल में से ज़कात देने से कुछ कम हो गया, लेकिन हकीकी माने में देखेंगे अल्लाह ऐसी बरकत देता है कि बरकतों की वजह से दुनिया में और आखिरत में हमें बहुत ज्यादा इसका फायदा और इसकी इजाफी चीजें हमें मिलती रहती है। अल्लाह के रास्ते में कोई चीज हम खर्चा करते हैं, अल्लाह उसका बदला 10 गुना तो देता ही देता है, और उससे बढ़ के अल्लाह तबारक ताला 700 गुना और उससे भी ज्यादा देता है। अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल देते हुए कुरान में फरमाया कि सुम्बुला जैसे एक दाना है, एक दाने में कितने उसके कॉम्पल निकलते हैं, और ये होते होते 100 के बराबर और 700 गुना अल्लाह ताला बढ़ाकर देता है। और फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला इजाफा करता है जितना चाहता है, जितना चाहता है अल्लाह बढ़ा के देता है। तो ज़कात में बढ़ोतरी भी है और माल की पाकी सफाई भी है। हाज़रीन, ज़कात इस्लाम की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद भी है। ज़कात की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, और ज़कात के फवाइद के बारे में भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक हो जाएंगे। ज़कात अदा करने से अल्लाह की रहमत में हम शामिल हो जाएंगे, और अल्लाह की रहमत हासिल करना बहुत बड़ी बात है। मैंने जितने आसानी से कह दिया, आपने जितने आसानी से सुन लिया, अल्लाह की रहमत हासिल करना उतने मामूली बात नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन ले। नबी ने फरमाया, किसी को उसका अमल जन्नत में लेके नहीं जा सकता। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वला अंत या रसूल अल्लाह, आपको भी? कहा कि हां, मुझे भी अपने आमाल जन्नत में लेकर नहीं जा सकते हैं। इल्ला यतगम्मदनी रहमतुल्लाह, इल्ला कि अल्लाह की रहमत जब तक शामिल हाल ना हो, अल्लाह की रहमत के बगैर हम एक कदम न दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के इतने एहसानात हैं, सारी जिंदगी इबादत करें, सदका तो खैरात करें, जिक्र अस्कार कर दें, अल्लाह का हक अदा हो नहीं सकता है। अल्लाह तो रहमत देगा, जन्नत देगा अपनी रहमत और फजल से। इसीलिए अकीदे की किताबों में अहले इल्म लिखते हैं, उलमा लिखते हैं कि नेकोकारों को जन्नत में दाखिल करना यह अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजल से होगा।
और गुनहगारों को जहन्नम में दाखिल करना अल्लाह का आदल है, ये इंसाफ का तकाजा है। और मैंने 12 इससे पहले बताया कैसे इंसाफ है, यहां पर वक्त ना काफी है। हाज़रीन, अल्लाह की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाए बहुत बड़ी बात है कामयाबी के लिए, और ज़कात अदा करने से अल्लाह की रहमत हमें मिलती है। अल्लाह ने सूरह आराफ की आयत नंबर 165 में फरमाया, वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून वयुअतूना ज़कात। मेरी रहमत हर चीज को शामिल है, मेरी रहमत के बगैर कोई चीज चल नहीं सकती, हरकत नहीं कर सकती है, हर चीज को मेरी रहमत शामिल हाल है। फसयक्तुबुहा, लेकिन याद रखिए आखिरत में, और खास अल्लाह की रहमत खासा, एक रहमत आम्मा हर एक के लिए है, रहमत खासा उन लोगों के लिए है, लिल्लज़ीना यत्तक़ून, वो लोग जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। रमजान के रोजे का मकसद भी है लअल्लकुम तत्तक़ून, और ज़कात अदा करने वालों को अल्लाह की रहमत खासा हासिल होती है, वह युतून ज़कात। हाज़रीन, इसी तरह से ज़कात ये ईमान की अलामत है। ज़कात देने वाला मोमिन है, और जो जिसके माल में ज़कात फर्ज है, वाजिब है, कमा हक़्क़हु, माल की ज़कात अदा नहीं करता है, वो कमा हक़्क़हु मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में मोमिनीन के बारे में बयान फरमाया, अल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द औरतें वो हैं, बादुहुम औलियाउ बाद, एक दूसरे के वो दोस्त होते हैं, मोमिन मोमिन के दोस्त हैं। यअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हैं, व युकीमूना अस्सलात व युतूना ज़कात, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। तो ज़कात अदा करने हकीकी माने में करने वाले मोमिन है, और यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन में से हैं। ज़कात अदा करने वाले जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन में से हैं। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल मोमिनून में जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन का तज़किरा करते हुए फरमाया, वल्लज़ीना लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं वो जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन में से है, लिहाजा ज़कात अदा करना चाहिए। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ताल्लुक से बाकायदा ये हुक्म दिया। एक शख्स ने आकर नबी से कहा, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जिस पर अमल करके मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में जरा बराबर किसी को शरीक ना ठहराना, यही असल है। इबादत शिर्क से बच के करना है, शिर्क के साथ इबादत अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। ये बुनियाद है, ये अकीदा है, ये मनहज है। व तुकीमुस्सलात अल मक्तूबा, और फर्ज नमाज अदा किया करो, व तुतिज़ ज़कात, और ज़कात अदा किया करो, व तसिलुर रहम, और सिला रहमी किया करो। ज़कात के बाद सिला रहमी का तज़किरा किया, यह पैगाम है कि आपकी ज़कात के सबसे ज्यादा हकदार वो हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके रिश्तेदारों में से कौन कौन ज्यादा मुस्तहिकीन है। और बाज खानदानों में मैंने देखा बहुत अच्छा तरीका है, खानदान के 20-25 अफराद हैं। अब इस बेंगलोर में समझ लीजिए 20-25-30 घराना है, उनमें से 5 लोग ज़कात देने के काबिल हैं। तो क्या करते, वो 5 लोग, 5 अफराद ज़कात, अपने खानदान के ज़कात एक जगह जमा करते हैं। जमा करने के बाद क्या करते हैं, अब ये 25 में से 5 ज़कात देने वाले हैं, और 10 समझ लीजिए कि वो मिडिल क्लास के ज़कात देने वाले भी नहीं, लेने वाले भी नहीं है, और बाकी ऐसे हैं 10-12 ऐसे हो या 5-8 ऐसे हो जो मुस्तहिक है ज़कात के, ये जो माल है उनको देते हैं। उनकी इज्जत की इज्जत भी बाकी रह गई, हाँ, वरना क्या करते हैं,
ज़कात देते हैं, फोटो लेते हैं, उसके बाद दूसरे दिन पेपरों में आता है हमने फुला को दिया है, आपका सीना बड़ा चौड़ा हुआ। लेकिन आप जरा सोचे उस गरीब की जगह पर अगर हम और आप होते कैसे लगता है। ज़कात आपको देना है, उस आदमी को याद करो, अल्लाह के वास्ते रात के वक्त में निकल गया है ज़कात देने के लिए, ताकि क्या हो वो किसी को पता ना चले, किसी को वो मालूम ना हो कि मैंने ज़कात दिया है। और रात में निकल गया, गर्चे दिया रात के अंधेरे में, किसी के हाथ में थमा दिया, वो चोर निकला। दूसरे दिन एक औरत के हाथ में थमाया, वो जानिया निकली है। लेकिन ये और बात है, वो और मसला है कि वो ज़कात होगी या नहीं होगी। ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि देने वाले ने देकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, देने वाले ने देकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। आप कान खोल के सुन लें, लेने वाले आप जिम्मेदार हो गए हैं। आप हकीकी माने में सही लोगों तक ज़कात पहुंचाना है, सही लोगों तक ज़कात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने ले लिया मांग मांग के, देने वाले देकर बरी हो गए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हकीकी माने में जो लोग मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंचाया करो। यह नहीं है कि कोई आएगा तो हम देंगे, बैंक में बैलेंस करके सेंत सेंत के रख लें और मजबूर परेशान हाल मरते रहें। याद रखिए बिल्कुल बजा नहीं है, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, वरना आप मत लो, वरना जिम्मेदारी मत लो। अगर आप मुस्तहिकीन तक पहुंचाना चाहते हैं, जाकर पहुंचा सकते हैं तो ले लो, नहीं पहुंचा सकते हैं तो मत लिया करो, वरना अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। और ये बात याद रखिए, मुस्तहिकीन आ गए हैं, उनकी जरूरत है, आपके पास उतने हैं, आप उसको दिया करो। ये मत देखो कि इतने देना है इसको, हां कल के दिन कोई आएगा नहीं आएगा उसके लिए आप जमा करके नहीं रख सकते हैं, इल्ला माशाअल्लाह थोड़ा बहुत और बात है, लेकिन सामने आ गया उसकी सख्त जरूरत है और उसकी जरूरत है 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख, आपने उसको 2-4 हजार रुपए देके भेज दिया, जबकि आपके पास मौजूद है। वाकई माने में याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए अपने हल्के में अपने सर्कल में देखा करें कौन ज़कात के ज्यादा मुस्तहिक हैं, और उनमें से कुछ हैं जो मुंह मारे हैं, पूछ नहीं सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं, उनका चेहरा देखकर मालूम कर लिया करो, चेहरा देखकर मालूम कर लिया करो। कहा कि देखो उनके माल में जो नेकोकार लोग हैं, उनके माल में ज़कात का हिस्सा है, हक है, हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। साइल मांगने वाला, महरूम कौन है? जो मांग नहीं सकता मगर ज़कात का मुस्तहिक है, वो ज़कात का मुस्तहिक है लेकिन मांग नहीं सकता है। पहले अच्छा भला था, अच्छा खासा था, अल्लाह रहम फरमाए कभी हो जाता है मकरूज हो गया, तिजारत में घाटा हो गया, या किसी बीमारी में परेशानी में मुब्तला होके वो उसका जो है खल्लास हो गया। याद रखिए ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखना है। कौन रखेगा? मुझे मालूम है, आपके खानदान के बारे में मालूम नहीं है, आपको पता है आपके खानदान के बारे में, आपके सर्कल के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, आपके इलाके के बारे में आपको ज्यादा पता है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि देखो तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उस इलाके के मालदारों से लेकर उस इलाके के गरीब फुकारा मसाकिन पे खर्चा किया जाएगा। इलाके वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, इलाके वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, पहले इनको दिया करो। आपको अल्लाह ताला आपके इलाके के बारे में पूछेगा, अड़ोस पड़ोस के बारे में पूछेगा, रिश्तेदार व अकारिब के बारे में पूछेगा। अल्लाह ताला आपको दूर दराज के बारे में नहीं पूछेगा कि वहां आपने दिया या नहीं दिया है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार व अकारिब कुर्ब जवार वालों के ताल्लुक से पूछेगा। हां, अगर कुर्ब जवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, उस इलाके वाले ज़कात के मुस्तहिक नहीं है और जायद ज़कात है, तो वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मुंतकिल ऐसा नहीं कि उस शहर की ज़कात सिर्फ उसी शहर में देना है, दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, लेकिन पहले अपने इलाके वाले को तरजीह देना है, क्योंकि नबी ने फरमाया उस इलाके के गरीब मालदार से लेके उस इलाके के फुकारा को दिया जाएगा। मुल्क शाम में मुआज़ बिन जबल को भेजते हुए नबी ने फरमाया, और वहां देने के बाद जब बचता था तो मुआज़ बिन जबल फिर मदीना भेजा करते थे। तो एक शहर से दूसरे शहर को भेजा जा सकता है, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन पहले अपने इलाके के लोगों को तरजीह दिया करें। हज़रीन, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कात अदा करने वाले और सिला रहमी करने वाले
जन्नत के हकदार है, उस सहाबी से कहा कि तुम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हाज़रीन, ये ज़कात के फवाइद क्या हैं? ज़कात के फवाइद बहुत सारे हैं, दुनियावी उखरावी कई फवाइद हैं। चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले ज़कात मालदार के लिए एक शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मालदार बनाया, लिहाजा आप अपने मालदारी की शुक्रगुजारी करो, आप अपने माल का शुक्र मनाया करो। और शुक्र यह है कि अल्लाह की दी हुई ये नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो। अल्लाह ने फर्ज करार दिया है तो तुम दिया करो, माल में से ज़कात निकाल के दिया करो, ये शुक्रगुजारी है। और दूसरी बात, इंसान के दिल की बखीली को खत्म करने का जरिया है। गरीब फुकारा मसाकीन से हमदर्दी भी होती है। और कभी ऐसा होता है कि फुकारा मसाकीन और दीगर लोगों के जो एक दिल में एक बुग़्ज़, हसद, नफरत और इसी तरह से नजरे बद वगैरह की बातें होती हैं कि वो आ भरते हैं, उसको देखकर माल के ज़कात देने से इन बातों से भी आप महफूज हो जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखिए, ज़कात अदा करने का बड़ा फायदा जो शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह ताला माल में इजाफा करता है। हमने गुज़िश्ता जुमा भी सुना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा, नाशुक्री करोगे अजाब में मुब्तला कर दिए जाओगे। अब आइए किस तरह से अजाब में अल्लाह ताला दो चार करता है, ज़कात अदा ना करने वालों का क्या अंजाम होता है और अल्लाह ताला कैसे अजाबात से दो चार फरमाता है। ज़कात अदा ना करने वाला हमने अभी मालूम किया है मोमिन नहीं है, इनकार करता है, काफिर है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों से जंग का ऐलान किया है जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कहा कि जो नबी के जमाने में ज़कात अदा करते थे, आज अगर एक रस्सी भी रोकेंगे मैं उनसे जंग का ऐलान करता हूं। जंग काफिरों से किया जाता है, यानी ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। और इससे यह भी इस्तिदलाल है, कुछ लोग तमिलनाडु और उस इलाके में पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि माल में एक बार ज़कात दे दिए, अब उसके बाद जिंदगी भर उसमें ज़कात देने की जरूरत नहीं है। हां, कुछ लोगों के पास ये मसला है, एक बार आपने ज़कात दे दिया है, अब कभी आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं है, और टैक्स की तरह समझते हैं। आपने माल में टैक्स दे दिया, व्हाइट मनी हो गई, अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको उसमें से देना नहीं है। ये टैक्स नहीं है, ये इबादत है। ये अल्लाह का हक भी है, बंदों का हक भी है। याद रखिए, टैक्स की तरह नहीं है, ये माल की इबादत है, माली इबादत भी है ये। और याद रखिए, इसमें हर साल देना है। इस्तिदलाल कैसा है? अबू बकर ने क्या फरमाया, जिस माल की ज़कात नबी के जमाने में दिया करते थे, अगर उसमें से एक रस्सी रोक रहा है तो नबी के जमाने में तो दे चुके हैं ना। फिर भी अबू बकर कह रहे हैं, अगर मेरे जमाने में वो रोकेगा तो मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। ऐसा नहीं कि एक बार ज़कात दे दिए तो जिंदगी में हो गया, नहीं, हर साल देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा। जो आपके सेविंग में से उसके जो शराइत इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। और दूसरा इस्तेदलाल जो ग्रामेटिकल एतबार से है, और ग्रामेटिकल एतबार से ये रिसर्च जो अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, और वो रिसर्च मैंने अपने थीसिस में ऐड किया और उसको मैंने अपने एतबार से उसको दाखिल किया है, और वो है कि ग्रामेटिकल एतबार से शरीयत को कैसे समझ सकते हैं। अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 103 में फरमाया, नबी से खिताब करके, खुद मिन अमवालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ नबी, आप लोगों के माल में से ज़कात ले लो, और उसके बाद ये ज़कात सदक़तन तुतहिरुहुम। ये तुतहिरु कौन है? तुतहिरु पाक करेगा। कौन पाक करेगा? जो लोग इस्तेदलाल करते हैं, नबी से अल्लाह ने कहा कि माल के ज़कात लो और आप पाक करेंगे। नबी नहीं है, हम ज़कात नहीं देंगे। ज़कात से मानी इन्हें ज़कात है ना, ज़कात का इनकार करने वालों ने इनकार किया ना। कैसे इस्तेदलाल किया? कहा कि अल्लाह ने नबी से कहा ज़कात लो और पाक करो। नबी नहीं है, अब कौन पाक करेगा भाई, इसलिए हम ज़कात नहीं देंगे। इस्तेदलाल देख रहे हैं? अब आइए मैं आपको ग्रामर, एक तो नुसूस तो है, अबू बकर ने कहा नबी के जमाने में दिया, अब नहीं देंगे तो जंग करूंगा। इससे मालूम होता कि नबी के बाद भी देना है, नमाज रोजा दिगर जो आकाम है वो भी नबी के बाद बाकी ये भी करना है। ग्रामेटिकल एतबार से
عربی کا ایک جملہ ہے, عربی کا قاعدہ ہے, آپ عوام کو شاید سمجھ میں آئے. نکیرہ کے بعد اگر جملہ آئے, نکیرہ کے بعد کوئی سینٹنس آئے اور وہ جو ورڈ ہے یہ نکیرہ ہے, یعنی یہ کامن ناؤن ہے, پراپر ناؤن نہیں ہے. پراپر ناؤن نہیں, کامن ناؤن کے بعد مکمل ایک سینٹنس آئے تو یہ سینٹنس اس پراپر کامن ناؤن کی صفت بنتی ہے. یعنی یہاں پر تطہرو یہ نبی کی صفت نہیں ہے, یہ صدقہ کی صفت ہے. یعنی یہ صدقہ تمہیں پاک کرے گا, یعنی صدقہ جب جب تم دو گے صدقہ پاک کرے گا, نہ کہ نبی تم کو پاک کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے. حاضرین گرامی, زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی سزا سے دوچار کرتا ہے. اصحاب الجنہ, باغ والوں کا واقعہ اللہ نے سورۃ القلم میں بیان فرمایا ہے. اصحاب الجنہ کا واقعہ کہ باغ کی فصل کی کٹائی کے وقت میں فصل میں بھی زکوٰۃ دینا ہے. باپ کیا کرتا تھا, ہر سال زکوٰۃ فصل کی کٹائی کے وقت میں ادا کر دیتے تھے. غریب غربا آتے تھے, سب جمع ہوتے تھے, فصل کی کٹائی کے بعد غریب کو حصہ دیتے, اس کے بعد وہ گھر لے کر آتے. باپ کا انتقال ہو گیا, اولاد نے یہ سوچا ہمارے باپ اپنے ہارڈ ارننگ, اپنی محنت کی کمائی, اپنی محنت کر کے غریب غربا کو دے دیتے تھے, ہم نہیں دیں گے. اور اگر ہم دن کے وقت میں جا کر فصل کی کٹائی کریں گے تو غریب آ جائیں گے, ہم روک نہیں سکتے, مروت کی بات ہے. سامنے آ گئے, مانگے, دینا ہر سال دیتے تھے تو ہم دے نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھنس جائیں گے. اس لیے ہم راتوں رات جا کے فصل کی کٹائی کر لیں گے تاکہ کانو کان غریب کو خبر نہ ہو غریب کا حق مارنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد رات میں یہ لوگ نکلے تلاش کے لیے, باغ گھومے گھومے گھومے, سر چکر کٹائے, سر چکر کٹائے, سرگردہ ساری رات گھومتے رہے. کہاں ہمارا باغ, کہاں ہمارا باغ, کہاں باغ گیا ہے. صبح کے اجالے میں دیکھ رہے باغ تہس نہس ہے, جل کے راکھ ہو کے, بھن کے تہس نہس بھسم بن کے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا حال ہوا ہے, تم نے غریبوں کا حق مارنا چاہا, اللہ نے دیکھو کیسے ہلاک و برباد کر دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے لم یمنعوا زکاۃ اموالہم. فجر میں درس چل رہا ہے, 5 گناہوں کی وجہ سے مختلف سزائیں, ان میں سے ایک ہے اگر کوئی قوم زکات روک لیتی ہے, مال کی زکات ادا نہیں کرتی ہے, لم یمنعوا قوم لم یمنعوا زکات اموالہم, زکات روک لیتی ہے قوم تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے. بارش نہیں ہے, قلت بارہ ہے, اس کے لیے استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے. دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرو, دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرو. کیا ہم نے غریبوں کا حق مارا ہے, کیا ہم نے تجارت و کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, کیا ہم نے لوگوں کا مال ہڑپا ہے, کیا آج کاروبار اور تجارت میں لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے, لوگوں پر مالی ظلم ہو رہا ہے. مال کا اگر ظلم ہو رہا ہے, یاد رکھو کسی بھی اعتبار سے, افراد کے ہو, حکومتوں کے ہو, اجتماعات کے ہو, کسی کا بھی ظلم اگر عوام کے مال پر ہو, اللہ تبارک تعالی بارش کو روک لیتا ہے. اور خاص طور سے غریبوں کا حق زکات اگر ادا نہ کریں اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. اور اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے فرمایا لولا البہائم لم یمطروا, اگر یہ چوپائے نہ ہوتے ایک قطرہ بارش کا اللہ تعالیٰ انسان کو نہ دیتا. جانوروں سے گئے گزرے, جانوروں سے گئے گزرے بن جاتے ہیں وہ لوگ جو زکات ادا نہیں کرتے ہیں, غریب کا حق مارتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, آج ہمیں شکر منانا ہے ان جانوروں کا اگر بارش ہو رہی ہے, ان جانوروں کی وجہ سے. یاد رکھیں میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ غریب کا حق نہ مارے. نبی نے یہ بھی فرمایا ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. اور ناپ تول میں کمی بیشی, یہی میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تجارت اور کاروبار میں دھوکہ دینا, لوگوں پر مالی ظلم کرنا, مال ناجائز طریقے سے ہڑپنا. حاضرین یاد رکھیں میرے بھائیوں, اس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ, وہ لوگ
जो सोना चांदी सेत कर रखते हैं, रुपया पैसा बैंक बैलेंस कर करके रखते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्चा नहीं करते हैं, ज़कात अदा नहीं करते हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसों को दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दिया करो। कल क़यामत के मैदान में यही ज़ेवरात, यही सोना चांदी उसके गले के सांप बन जाकर डसेंगे और कहेंगे कि अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। दुनिया में बड़े शौक से पहना था, दुनिया में बड़े शौक से सेत के रखा था, दुनिया में बार बार जेल बैलेंस चेक किया करता था, अब बता आज उसका भी हक अदा कर लिया कर, आज तुझे उसकी सजा भुगतनी है। जो ज़कात अदा नहीं करेंगे जानवरों के, उन जानवरों को जरिए से उनको कुचला जाएगा, खुरों से वो जानवर उसको कुचलेंगे। याद रखो मेरे भाइयों, जानवरों की ज़कात अदा किया करो, माल दौलत की ज़कात, सोना चांदी की ज़कात अदा किया करो, तिजारत और कारोबार के सामान की ज़कात अदा किया करो, फसल के भी ज़कात अदा किया करो। हर एक की ज़कात अदा करना ये गरीब का हक है, वरना फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। ज़कात अदा करने के नुकसानात और फवाइद में से एक अजीम हदीस सही मुस्लिम की रिवायत है। एक आदमी, पिछले कौम का वाकया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अपने खेत में, खलियान में, खेतों में, बाग में काम कर रहा था, इतने में बादल के टुकड़े से आवाज आ रही थी, इस्क़ हदीक़त फुलान, इस्क़ हदीक़त फुलान, फुला आदमी के बाग को सैराब करो, फुला आदमी के बाग को बारिश बरसाओ। बादल से गैबी आवाज आ रही, वो बादल का टुकड़ा गया और जाने के बाद एक खास बाग पर पानी बरसाया। वो आदमी बड़ा ताज्जुब किया और वो पीछे हो लिया, जाकर बाग के मालिक से पूछा कि भाई मैंने बादल के टुकड़े में तुम्हारा नाम सुना, तुम्हारा नाम लेकर कहा जा रहा था फुला आदमी के बाग में सैराब करो। अल्लाह अकबर, क्या तुम ऐसा काम करते हो? उसने कहा मैं ये काम करता हूं कि मेरी फसल में से 3 हिस्सा करता हूं, एक गरीबों का अल्लाह के रास्ते का ज़कात अदा कर दिया करता हूं, दूसरा मैं आइंदा साल के लिए फसल के खर्चे के लिए रखता हूं, और एक मैं अपने लिए रिश्तेदारों के लिए हिस्सा रख लेता हूं। का के ही वजह है कि सारे बागात में आपके बाग को आकर सैराब किया है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह अकबर, कि बादल के टुकड़े में गैबी आवाज नाम लेकर गरीब का हक अदा किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, वबगूनी फि ज़अफ़ा, तुम मुझे ढूंढो कमजोरों में, मिस्कीनों में, गरीबों में, नादारों में ढूंढा करो, उनका हक अदा किया करो, मुझे पाओगे। याद रखो मेरे भाइयों, ये बड़े फवाइद है ज़कात अदा करने के, और इसी तरह से नुकसानात भी है ज़कात अदा ना करने के। हाज़रीन, ज़कात के चंद अहकाम और मसाइल गोश गुजार कर लें। ज़कात, सोना चांदी रुपया पैसा, ये तीनों मिलाकर एक जिन्स है। सोना चांदी रुपया पैसा मिलाकर एक जिन्स है, एक है, इसमें है। और इसी में शुमार होगा तिजारत और कारोबार का सामान, तिजारत और कारोबार का सामान। सोना चांदी रुपया पैसा, तिजारत और कारोबार का सामान, इसका सिलेबस ये है, निसाब ये है 85 ग्राम गोल्ड, 85 ग्राम खालिस गोल्ड, खालिस सोना की कीमत जितनी बनती है आज के हिसाब से मैं ये करीब करीब बता रहा हूं 5 लाख, तकरीबन 5 लाख। अगर आपने तिजारत और कारोबार में जो आपका भंडवाल है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप कपड़े के ताजिर हैं, आप जूते के ताजिर हैं, या कोई और चीज, तो उसमें आपके जो असल कपड़ा है, आपके इंटीरियर है, आपने शोकेस बनाया है, और जो दूसरी चीजें आपने बनाई उसमें नहीं, उसका खर्चा कुछ नहीं है, उसमें ज़कात नहीं। असल जो तिजारत का सामान है, कपड़ा, जूता, आप उसमें आपने लगाया था 5 लाख, अब साल भर बढ़ के माल आपने और भी ऐड किया है। अब आज अगर आप उसको निकालने जाओगे, बेचने जाओगे, तो आपको आएगा 6 लाख। तो ये 6 लाख साल भर आपने कमाया है और सारा खर्चा कर दिया, कुछ बचा नहीं है, तो सिर्फ उस 6 लाख की ज़कात आपको देना है 1 लाख में 2500 के हिसाब से।
और अगर सार्बल कमाने के बाद कुछ बैंक बैलेंस भी है, 1 लाख बैंक में है, आपका भंडवाल और तिजारत में यहां 6 लाख है, कुल 7 लाख के ज़कात आपको अदा करना है। इसी तरह से आपके पास सोना चांदी भी आपका है, बीवी की माल बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का माल बीवी का, वो अलग है। अगर वो 85 ग्राम गोल्ड यानी खालिस वेस्टेज निकाल के 85 ग्राम है तो बीवी ही देना है ज़कात। अगर बीवी के कमाई नहीं है, वो दे नहीं सकती है, शौहर दे रहा है, अदा हो जाएगी ज़कात, एहसान होगा शौहर की तरफ से, एहसान होगा। नहीं, शौहर के पास भी नहीं है तो बीवी को चाहिए कि माल में से कम करके 85 ग्राम है, आप उसमें से जितना निकलता है 2 ग्राम या 1.25 ग्राम, उतना आप निकाल दिया करो, और 85 ग्राम से कम हो जाए उतना रख लिया करो, पे ज़कात नहीं देना है। किसी के पास सोना चांदी रुपया पैसा तीनों मिलाकर 85 ग्राम गोल्ड हो जाए तो याद रखिए उसमें से आपको 2.5% अदा करना है। यह है उसका हिसाब। ऐसा नहीं कुछ समझते हैं 85 ग्राम तक माफ, यह स्लैब सिर्फ गवर्नमेंट में चलता, टैक्स में चलता, यहां ऐसा स्लैब्स नहीं है। यानी 85 ग्राम गोल्ड, किसी के पास 100 ग्राम है तो 85 ग्राम निकाल के सिर्फ 15 ग्राम का देना नहीं। जब 100 ग्राम 85 ग्राम से हो गया तो पूरे 1 ग्राम से सबका देना है। ये लोग सवाल करते हैं, ये आते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए। इसी तरह से शहर में आमतौर से ही 2 चीजें हैं, यहां तो जानवर पालते नहीं है और यहां पर फसल की कटाई वगैरह नहीं है। फसल की कटाई हो तो उसमें से आपको अगर आपने खर्चा किया है उस पे तो 20वां हिस्सा देना है अल्लाह के रास्ते में। और जानवरों के अलग अलग, बकरों का अलग है, गाय बैल का और इसी तरह से ऊंट का अलग अलग हिस्सा है, तो इसमें से आपको ज़कात देना है। शर्त यह है 1 साल गुजर जाए, सिलेबस को पहुंच जाए और आपके पास वो सेविंग्स हो। किसी के पास सेविंग से 5 लाख और उस पर कर्जा है 10 लाख, तो क्या करेगा? ज़कात देगा? नहीं देगा। कर्जा जिस पर है, कर्जा निकालने के बाद जो बचा है उसमें से ज़कात देना है। रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं तो क्या उसमें ज़कात देना है? हां, आपने कारोबार के तौर पर रियल एस्टेट में जितना आपने इन्वेस्ट किया है आपको पता है उसमें से हर साल आपको ज़कात देना है। हां, आपने इन्वेस्ट किया है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अभी आप उसको बेचे नहीं है, बेचने के बाद वो 30 लाख बन के आया तो अभी आपको 10 लाख का जो देना 1 साल का देना, क्योंकि अभी आपके हाथ में आया है ना। जब तक जमीन पे है आपने जितना लगाया है उसमें से आपको ज़कात देना है। इंसान के अपने जो जरूरत की चीजें हैं, घर के फर्नीचर्स हैं, कार हैं, वॉच हैं और इसी तरह से दीगर जो जरूरत के सामान है उसमें ज़कात नहीं है। जेवरात में राजे कौल के मुताबिक ज़कात देना है, जेवरात में ज़कात देना चाहिए, डाउट फ्री हो जाना चाहिए, बेहतर यही है। बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि जेवरात में क्या है उसका वैल्यू बढ़ता है। आपने वॉच खरीदी 2 लाख की, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं घटेगी। आपके कार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू घटेगी, लेकिन जेवरात की वैल्यू बढ़ती है, उसमें ज़कात देना है, इस्तेमाल की चीजों में ज़कात नहीं। हां, कोई कार का ही कारोबार करता है और कार रखा है 1 से 2 उसके शोरूम में कार है तो उसका इन्वेस्टमेंट है, अब जितना उसमें इन्वेस्ट किया उसमें से ज़कात देना पड़ेगा। अब यह होता कि आपने किसी कंपनी से टाई अप करे, रेंटल कार आपने रखा है, रेंट पे रखा है तो 1 से ज्यादा कार है, 1 आपके इस्तेमाल के लिए, बाकी कार के जो रीसेल वैल्यू होगी और इसी तरह से उसकी जो आमदनी है उसमें से आपको ज़कात देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तिजारत और कारोबार के तौर पर है। इसी तरह से आपके लेद है, आपने मशीनरीज रखी है, आप वेल्डिंग के लिए बहुत सारे मशीन रखे हैं। इसी तरह से कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने क्या किया है उसमें, अब डेंटिस्ट है, दूसरे यह है, उन्होंने सेटअप किया, लाखों का उसके अंदर है, इन्वेस्ट किया है, तो क्या उसमें से वो ज़कात देना है? तो याद रखिए उलामा ने ये लिखा उसके रीसेल वैल्यू, वो बेचने जाएगा तो कितना, क्योंकि आपने एक डेंटल का जो एक कुर्सी आपने लिया 7 लाख में बेचने जाएगा उतना नहीं आएगा, जितना बेचने जाएगा रीसेल वैल्यू आए और आपकी सेविंग्स उसमें से जो है उसमें से आपको ज़कात देना है। और बाज़ अहले इल्म, क्योंकि ये तिजारत और कारोबार के तौर पर जो है, अब है इंसान का जाती घर है, एक घर है जो जाती घर है, जाती घर में जो आपने पैसा लगाया है उसमें ज़कात नहीं है। आपने घर बनाया, जमीन की कीमत 1 करोड़, 1 करोड़ आपने खर्च किया, 2 करोड़ लगाया, वो 2 करोड़ की ज़कात नहीं है। घर की जो आमदनी है, अगर वो 85 ग्राम गोल्ड या गोल्ड ये पैसा बचाकर सेविंग हुआ
हर महीना रेंट आ रहा, खर्चा हो जा रहा, कुछ नहीं देना है। सेविंग है तो उसमें से देना है। अब एक मसला आता है, एक आदमी रेंट पे है और उसने एडवांस दिया है 5 लाख, या कुछ लोग लीज पे लेते हैं। हलाल हराम और बात है, मैं लीज को हराम समझता हूं। मेरे जाती राय यह है कि लीज पे लेना जायज नहीं है, लीज पे लेन देन करना दुरुस्त नहीं है। मैं बता रहा हूं, कोई लीज पे लिया है और मिसाल के तौर पर 20 लाख उसने लीज के तौर पर दिया है, तो क्या ये 20 लाख जो एडवांस दिया, ये 2 लाख 5 लाख जो एडवांस दिया, उसमें से ज़कात देना है? कुछ उलामा कहते हैं चूंकि ये इनकी सेविंग्स है, उसमें से ज़कात देना है। मैं थोड़ी तहकीक और किया जरा दूर से, तो मुझे लगा कि ज़कात नहीं देना है। क्यों? एक आदमी 2 करोड़ के घर बनाया, उसके 2 करोड़ में ज़कात नहीं है। ये बेचारा, इसका जाती घर नहीं है। 2 करोड़ के घर क्यों बनाया? रहने के लिए, रिहाइश के लिए। तो रिहाइश बुनियादी जरूरत है, रिहाइश के लिए जो खर्चा करता उसमें ज़कात नहीं है। इसकी भी बुनियादी जरूरत है ना रिहाइश के लिए, रिहाइश के लिए इसका घर भी नहीं है जाती, और साथ साथ किराए पे है, बेचारा किराए के घर पे है, एडवांस दिया 5 लाख 2 लाख, उस पे ज़कात देना है, और इसके पास करोड़ों है वो नहीं देना है। ये 20 लाख दिया लीज के तौर पर, उसमें ज़कात देना है। अहले इल्म ने लिखा है कि चूंकि इसकी बुनियादी जरूरत में दाखिल है, इसलिए उस पे से ज़कात देने की जरूरत नहीं है। ये बुनियादी जरूरत है इसलिए, क्योंकि अगर वो कल के दिन घर लेगा या एक साइट लिया घर बनाने के लिए, तो उसमें ज़कात नहीं देना। वैसे ही समझ लीजिए कि रिहाइश के लिए उसने रखा है, इसलिए उसमें ज़कात देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। इसमें कुछ बातें हो जिसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश है, और एहतियात का तकाजा जिसमें हो उसमें आपको अमल करना चाहिए। बहरहाल ज़कात सोना चांदी में वेस्टेज निकालने के बाद देना चाहिए। ऐसे ही रकम, एक आखिरी मसला याद कर लें, ज़कात जिस जिन्स पर वाजिब है उसी जिन्स से ज़कात देना है। सोना चांदी रुपया पैसा एक जिन्स है, तो सोना चांदी की ज़कात आप चाहे सोना चांदी दे दो या पैसा दे दो, लेकिन लोगों से पैसा लेकर, मालदार से पैसा लेकर कोई इदारा उसको राशन किट बनाकर दे, कतअन जायज नहीं है। आपको गरीब के हक में तसर्रुफ करने का हक नहीं है। गरीब को पैसे की जरूरत है, आप उसको राशन पे राशन दिए जा रहे हैं। आप क्या करते? ज़कात के पैसे में से एम्बुलेंस खरीद रहे हैं। याद रखिए, यहां ज़कात पहले वो मरे तो मर रहा है, उसके बाद उसका आप मरने के बाद का सामान कर रहे हो, पहले उसको जीने का मौका तो दिया करो। याद रखिए, शरीयत ने फितरा को खुराक रखा है, उसमें पैसा देना जायज नहीं है। और ज़कात आप अगर फसल की ज़कात दे रहे हो तो फसल दिया करो, जानवर की ज़कात जानवर दिया करो। सोना चांदी रुपया पैसे को पैसा ही रखना, गरीब को पैसा ही देना है, पैसे की जरूरत पे ही उसका खर्चा करना है। याद रखिए मेरे भाइयों, और उसके लिए ज़कात किसको देना है? सूरह तौबा आयत नंबर 60, आयत नंबर 9, आयत नंबर 9, आयत नंबर 60, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने बयान किया 8 तरह के लोग हैं। बुनियादी तौर पर फकीर और मिस्कीन। फकीर कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है, खल्लाश। मिस्कीन कौन है? जिसके पास थोड़ा बहुत है मगर उसकी पूरी जरूरत पूरी नहीं होती है। उलमा ने इस्तिदलाल किया है मूसा और खिजर के वाक़ये से कि कहा कि वो जो कश्ती है li मसाकीन, मिस्कीन की, तो मिस्कीन कश्ती का मालिक है मगर इतनी कमाई नहीं होती है कि उसकी सारी जरूरत पूरी हो, इसको दिया जा सकता। फकीर मिस्कीन को ज़कात देना है, किसी सैयद को ज़कात नहीं देना। लेकिन सैयद आगे बढ़ के मांग रहा है, मैं सैयद हूं लेकिन मुझे ज़कात दो, तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ के किसी सैयद को ज़कात नहीं देंगे और इसी तरह से किसी मालदार को ज़कात नहीं देंगे। फकीर मिस्कीन होना चाहिए। और फकीर मिस्कीन इसी तरह से जो ज़कात कलेक्शन करने के लिए मेहनत करके यहां वहां से लेकर आते हैं, वो कलेक्शन करते हैं मेहनत करके, जाके उसमें से ले सकता है। कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ माइल है तो उसकी दिलजोई के लिए ज़कात दिया जा सकता है। मकरूज है, कर्ज में मुब्तला हो गया है, उसको ज़कात दे सकते हैं। मुसाफिर, उसके रास्ते में उसकी राह कट गई है और उसके सामान खत्म हो गया, मुसाफिर को दिया जा सकता है। याद रखिए, ये 8 तरह के लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। इसमें मदारिस डायरेक्ट नहीं आते हैं, मदारिस डायरेक्ट नहीं आते हैं।
मदारिस में ज़कात के पैसे ले जाकर उन गरीब बच्चों को खिलाया जा रहा, पिलाया जा रहा है। इसलिए इसमें ओहाले इल्म ने कलाम किया है। गरीब को क्या, आप पैसा लेकर गए, गरीब को पैसा दे दो, गरीब को पैसा दे देना। ये भी याद रखो, क्या करते हैं, ज़कात का पैसा लेकर हमने आपने ऑटो खरीदा, सिलाई मशीन खरीदा, कुछ भी खरीदा, खरीदने के बाद आप गरीब को दे रहे हैं, जायज नहीं है, जायज नहीं है। पैसा इसको दे दो और उसको मालिक बना देना, गरीब को मालिक बना देना। ज़कात के माल में से कर्जा देना भी जायज नहीं है, बैतुल माल में से मुस्ताहिक है तो उसको दे देना है। बाद में अगर वो मुस्ताहिक के बाद वो खुद ज़कात देने वाला बन गया, वापस कर रहा, और बात है। याद रखिए मेरे भाइयों, माशरे में ज़कात सही माने में निकाले और सही माने में मुस्ताहिकीन तक पहुंचाए, बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अपने अपने एतबार से ज़कात को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ज़कात का पैसा गरीब को डायरेक्ट पैसा दे दो। इसलिए बाज़ इदारे वाले ये करते हैं, ज़कात कलेक्शन करके लाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके हाथ में देते हैं, तुम ले जाकर ये पैसा फीस भरो, फीस भरो। हां, पैसा देकर फिर वो भरे, उसकी जरूरत। अगर वो कहेगा कि मैं जो है किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं करना है, मुझे तो खाना पीना राशन की जरूरत है और मैं अपने हिसाब से ले लूंगा। आपने उसको दिया 50 रुपए किलो वाला चावल, उसको जरूरत है 25 रुपए किलो वाला चावल, वो बचा लेगा 50 रुपया और दूसरा कुछ काम करेगा, वो कपड़ा खरीदेगा अपने मेयार के हिसाब से, इलाज करेगा, दूसरा कुछ करेगा। इसलिए आप उसको मत थोपो कि तुमको यही हम देंगे, नहीं, बल्कि क्या करो, आप उसको पैसा दे दिया करो, उसके हिसाब से वो अपने इस्तेमाल और जरूरत में इस्तेमाल कर लिया करें। बहरहाल और भी बहुत सारे मसाइल इस ताल्लुक से हो सकते हैं, जो मेरे दिमाग में बातें थी मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको ज़कात को सही माने में अदा करने की तौफीक अता फरमाए और मुस्तहिकीन तक सही माने में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा, हम ज़कात क्या करते हैं, 2000, 4000, 5000 करके देते हैं, उसकी जरूरत वैसे के वैसे ही रहती है। माशरे से आप ढूंढो, आपके मुसल्लियों में से, आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में से कौन परेशान हाल है। आपने ज़कात कलेक्शन किया 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस साल टारगेट करो कि 2, 3, 4, 5 लोगों को हम 2-2 लाख देंगे, 3-3 लाख देंगे, ताकि वो मुस्तकिल तौर पर आइंदा से ज़कात ना लेने वाला बने और उसको सेटअप करके दे दो, एक इसके तिजारत और कारोबार को बहाल करके दे दो। लेकिन हमारे दिल में बड़ी तकलीफ होती है किसी गरीब को देते हुए। इंसान की एक मेंटालिटी, फितरत है, बड़े 5 स्टार होटल में जाएगा और हजारों के बिल बनाएगा, उसके बाद वेटर को 100 रुपया तो कम हो गया, 200-500 के नोट वेटर को थमाएगा, जबकि उसकी सैलरी है, पगार, उसकी ड्यूटी कर रहा है। वही बाहर एक गरीब मिस्किन होगा, उसके लिए 10 रुपये निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हां, यहां पर देखो वो 100 रुपये देगा, 250 भी दे देगा के वेटर को वहां पर अपनी एक शान और डिग्निटी के लिए, लेकिन यहां पर गरीब को देते उसको तकलीफ होती है कि गरीब है, उसको कैसे 500 का नोट दे दे, उसको कैसे 1 लाख रुपया दे दे। याद रखिए मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अब देखेंगे, आपने सारे ज़कात का माल किसी एक को भी दिया है, दे दो ताकि उसको अच्छी तरह से बहाल कर दो। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन गिरामी, मस्जिद के ज़मीन की खरीदारी हुई है, आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 600 स्क्वायर फीट ज़मीन है और उसमें से अब तक इंशाअल्लाह 100 स्क्वायर फीट की तो कीमत तो आ चुकी है, बाकी रहे 500 स्क्वायर फीट। अब बताइए मस्जिद में जमात कितनी है? 2500 या चलो 2000 मान लेते हैं, 2 से 2500 का मजमा है, इसमें से 500 स्क्वायर फीट की बारी है। क्या 500 लोग एक स्क्वायर फीट नहीं ले सकते?
1 स्क्वायर फीट 8,500 रुपया। घर में मेहमान आए, बच्चे जिद करे, आइसक्रीम खाने पीने चले गए, 2-4 हजार रुपये ऐसे चले जाता है नहीं? अल्लाह हिफाजत फरमाए, बीमार हो गए, 8-10 हजार रुपये ऐसे चले जाता है। हाफ स्क्वायर फीट 4,250, 4,250 हाफ स्क्वायर फीट। क्या 2,500 लोगों में से 1,000 आदमी एक जुमा में ही हो सकता है? एक जुमा में हो सकता है 4,250। या अगर सब मान लेते चलो 2,000 का मजमा है, हर एक अगर ये सोचे कि भाई मैं 2,000 रुपया दे दूं तो इसी जुमा हो जाएगा, इसी जुमा हो जाएगा, आगे फिर कलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बहुत हम सोचेंगे, ब्रेकअप करेंगे, बहुत आसान है। चलो ना सही, अभी भी हमारे पास और 2 जुमा बाकी है, और 2 जुमा बाकी है। आज अगर कोई 500 आदमी हाफ स्क्वायर फीट आ जाते हैं, आइंदा जुमा कोई 500 आ जाए। आज कोई 250 आदमी हाफ स्क्वायर फीट आ जाए, आइंदा जुमा 250 आदमी, उसके बाद 250 आदमी, तब भी तकरीबन उनमें से कोई एक ले, कोई हाफ ले ले, जरूरत पूरी हो जाएगी। और एक बेहतरीन तारीख रकम होगी कि मस्जिद खलीलुल्लाह के मुसल्लियों ने एक रमजान में जमीन की खरीदारी की रकम रमजान भर में उन्होंने जमा किया है, दिया अदा किया है। बस नीयत की जरूरत है, आप दिल में इरादा कर लो, अल्लाह रास्ता निकालेगा। और उसके लिए हमने इंतजाम किया है, नमाज के बाद इंशाअल्लाह आप लिखवा दें, हमारे जो जिम्मेदारान है वो लिख लेंगे। आप नियत करके अभी लिखवा देंगे तो अभी से सवाब जारी, अकाउंट में सवाब जारी हो जाएगा। अभी आप लिखवा दो और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके आइंदा दे दिया करो, आइंदा थोड़ा थोड़ा करके दे दें। आप लिखवा दे अपने अपने हिसाब से, आगे बढ़ के जो थाम ले उसी का मीना और मिजान है। तो सबसे पहले मैं हाफ स्क्वायर फीट जिम्मेदारों जो लिख रहा है, मैं कह रहा हूं कि मेरी तरफ से लिख लें। और उसके बाद तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप भी आगे बढ़ के ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला सेहत व आफियत के साथ रखें। सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीन व ईमान अहलो अयाल की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह ताला इस रमजान को खैर व बरकत का जरिया बनाना, फलस्तीन के मुसलमानों के और गज्जा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना। आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।